हेलो फ्रेंड्स, करेंटली इन द मेडिकल सीरीज आज हम पैथोलॉजिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो पैथोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर बिकॉज 70% ऑफ द ट्रीटमेंट डिसीजंस लैब रिपोर्ट्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो जनरली एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें इतना डेप्थ में नहीं पता होता अबाउट द प्रोफाइल ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट। So in this video we will discuss about a brief introduction of pathologist. उसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, कौन कौन से वर्क प्रोफाइल्स हैं, स्टडी रूट्स कौन से हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड फाइनली डिमांड एंड सप्लाई। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। So pathologists investigate करते हैं about the cause of various diseases and the way it can be prevented. तो ये लोग chemical, microscopic and bacterial tests conduct करवाते हैं in blood, tissues, urine and other samples of patient to find out the cause of the disease ताकि ये doctors conclude कर सके कि बीमारी को ठीक कैसे किया जा सके। So pathologists usually database reports generate करते हैं and medical specialists या फिर surgeons उसको analyze करते हैं to find out the solution. So basically pathology में दो major branches हैं. First is anatomical pathology and second is clinical pathology. So let's discuss about the anatomical pathology जिसमें various work profiles आ जाते हैं. So the first profile is cytopathology जिसमें human cells को study किया जाता है in bodily fluids. उसके according reports generate किए जाते हैं. Second work profile is histopathology जिसमें cells, tissues या फिर बोन के सैंपल्स लिए जाते हैं टू एनालाइज द कॉज ऑफ द डिजीज बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड बायोप्सी। थर्ड वर्क प्रोफाइल इज फॉरेंसिक पैथोलॉजी जिसमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में पता किया जाता है। काफी मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी के डेथ के बाद फॉरेंसिक टीम आती है जिसमें एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट भी होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द कॉज एंड टाइम ऑफ द डेथ बाय परफॉर्मिंग वेरियस टेस्ट। नाउ द सेकंड ब्रांच इज क्लिनिकल जिसमें फर्स्ट वर्क प्रोफाइल इज हेमेटोलॉजी या हेमेटोपैथोलॉजी। सो इट इज द सब ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी जहां प्रोफेशनल कंडक्ट्स टेस्ट एंड एनालाइज डिफरेंट ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। तो यहाँ पर हेमेटोलॉजिस्ट की जरूरत होती है टू कलेक्ट एंड एनालाइज द ब्लड सैंपल्स फॉर डिफरेंट ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। सेकेंड वर्क प्रोफाइल इज इम्यूनोलॉजिकल। So this is the field of pathology which deals with the different kind of diseases of the immune system. So this is important in case of a transplant surgery and understanding the different issues related to immunodeficiencies या rejection of transplanted organs along with conducting analysis of blood samples. Third work profile is chemical pathology. So इसमें pathologist conducts biomedical investigation of various different bodily fluids such as urine, blood and cerebrospinal fluids. इसके अलावा you can be a consultant, medical examiner, professors, mortuary assistants, dermatopathologists या फिर healthcare workers. So there are different areas जहाँ pathologists work कर सकते हैं. Like they can work in government and private hospitals, medical laboratories, drug manufacturing factories, biotechnological industries, pharmaceutical industries. Yeah, they can have their own business. They can have their own pathology clinics. So top recruiting agencies in this field are Dr. Lal Patholabs, then we have Thyrocare, SRL Diagnostics, then we have Lucid Diagnostics, etc. So अगर मैं स्टडी रूट्स की बात करूं तो there are 3 ways to enter into pathology. First way is कि आपने एंट्रेंस एग्जाम NEET UG क्लियर करके आपने MBBS परस्यू किया जिसमें आपको ऑलमोस्ट 4 से 4.5 साल लग जाएंगे। Then you have to complete 1 year of compulsory internship. उसके बाद you can opt for NEET PG. Then you can pursue MD in pathology. Second way is again आपने NEET UG एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके MBBS परस्यू किया जहाँ आपको 4-4.5 साल लग गए जिसके बाद आपने इंटर्नशिप किया जिसके बाद you can opt for NEET PG. You can also opt for diploma in clinical pathology which is called DCP. तो ये करने के बाद you are eligible to open a lab or clinic or you can work under a bigger pathologist or you can pursue DNB after DCP. तो थर्ड वे ऑल्सो कि आपने ये पूरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके MBBS करके आपने जैसे ही इंटर्नशिप पूरा किया देन आपको DNB एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है। देन यू कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन टू अ DNB कोर्स इन पैथोलॉजी स्पेशलिटी। तो ओवरऑल 4.5 years of MBBS, then 1 year of internship plus NEET preparation जिसमें 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं. Then you will have to spend 2 to 4 years in DCP,
DNB। तो ओवरऑल 9 से 10 साल लग जाते हैं आपको पूरा पैथोलॉजी क्लियर करने में। इसके अलावा सुपर स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, लाइक वन कैन स्पेशलाइज इन हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी, लेबोरेटरी मेडिसिन, molecular genetics, molecular hematology, and there are numerous other options जिसमें और ज़्यादा years लग जाते हैं to become a super specialist in pathology। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी for a pathology graduate is around 25 to 30,000 rupees per month। मिड लेवल सैलरी 70 से 80,000 रुपए तक हो जाती है, एंड एट एक्सपीरियंस और सीनियर लेवल सैलरी रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 2 lakhs per month। So now the question is, who should pursue pathology? तो अगर आपने वो बुक पढ़ी है जिसका नाम है द फाइनल डायग्नोसिस बाय आर्थर हेली, यू वुड हैव लव्ड द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक। पैथोलॉजी इज सच एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच क्योंकि 70% ऑफ द ट्रीटमेंट डिसीजन लैब रिपोर्ट्स के बेसिस पे लिए जाते हैं, बट दिस फील्ड रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। पैथोलॉजिस्ट को अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है। यू शुड एंजॉय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। You should prefer to work in a lab behind a microscope instead of interfacing with patients all the day. You should also enjoy solving mysteries or finding answers. You are drawn towards scientific, analytical, technical aspect of medicine. So as a suggestion, you must spend the initial years in a good hospital जहाँ अच्छी faculties हो। इससे आप daily numerous samples को देख पाओगे and thus it will increase your learning experience. तो जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे आफ्टर 3 or 5 years of experience, you will not only be confident but also full of practical knowledge and learning। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक एंड डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं तो इंडिया में अराउंड 4,500 मेंबर्स हैं in the Indian Association of Pathologists and Microbiologists, but the actual numbers of pathologists is much higher। हर साल 1500 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं फॉर पैथोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स पैथोलॉजिस्ट एज अ इंटरेस्ट भी लेते हैं एंड कुछ स्टूडेंट एज अ कॉम्प्रोमाइज लेते हैं ड्यू टू लो स्कोर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डायग्नोस्टिक मार्केट $5 बिलियन का मार्केट है इन इंडिया एंड इट इज ग्रोइंग 15% एनुअली। इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जिसमें 70% पैथोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं एंड 30% रेडियोलॉजी सर्विसेज लाइक MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड। So no doubt big diagnostic companies like Dr. Lal, SRL are gaining share, but almost 90% of the market is dominated by unorganized player। इनके पास supervision के लिए registered pathologist नहीं है, which is a risk to the life of the patients। So this was all about pathology। I hope आपको ये वीडियो informative लगी होगी, and अगर लगी है तो इस वीडियो को like and share जरूर करिए। अगर आपको कुछ और डाउट हो या आप कुछ मेंशन करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स, एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।